Hello, good evening and assalamu alaikum. You are watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम. It is another fresh episode. आज का episode will be focused on cricket and as you know हम अपना alternate करते हैं शो. एक दिन हम क्रिकेट के ऊपर फोकस करते हैं, एक दिन हम फुटबॉल या बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं. आज का जो एपिसोड है बहुत स्पेशल है. वो क्यों है स्पेशल वो भी मैं रिवील करूँगी इन अ वाइल. लेकिन ऑन अनदर हैंड आई थिंक हमारा आज का एपिसोड विल बिगिन ऑन अ सेलिब्रेटरी एंड अ फेस्टिव नोट. और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है. सो दैट्स अ बिग रीज़न टू सेलिब्रेट. सो वी विल बी sort of unpacking that tournament, that final, and what this title win means for the under 19 team and for Pakistan cricket and its development. उसके अलावा आज के शो में हम एशेज़ के ऊपर भी बात करेंगे. देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट देयर. ऑस्ट्रेलियाज़ डोमिनेंस एंड कमिंग फ्रॉम अ टीम जिसके बारे में बहुत बातें हो रही थी कि ये टीम बैलेंस्ड नहीं है, ये टीम इतनी बड़ी थ्रेट नहीं होगी फॉर इंग्लैंड. Well, they have proven everyone wrong, and it will be interesting to unpack what's happening in the Ashes as well. और उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं जी न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट सीरीज़ में, उसके ऊपर भी बात करेंगे. बट बिफोर ऑल ऑफ दैट लेट्स टेक अ लुक एट क्रिकेटिंग न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. The Pakistan under-19 team achieved a commanding 191-run victory over India to win the ACC Men's Under-19 Asia Cup. Opener Sameer Minhas was the star of the final with a superb knock of 172 runs, while Abdul Subhan took 4 wickets in the semi-final against Bangladesh to help Pakistan reach the final. Australia won the third test against England by 82 runs in Adelaide. The home team has secured the series, establishing an unassailable 3-0 lead after a compelling victory in the third match at the Adelaide Oval. New Zealand achieved a resounding victory over the West Indies in the third and final test, securing a dominant 323-run win and sweeping the series 2-0. India wrapped up the highly contested 5-match T20I series against South Africa with a 30-run victory in the final match, securing the series win. After setting a competitive target, the Indian bowlers delivered a disciplined performance to restrict the South African batting lineup. The South Africa women's team delivered a flawless performance to secure a comprehensive 3-0 clean sweep in their one-day international series against Ireland. The South Africans were dominant throughout the series, highlighted by their record-breaking highest ever ODI total of 375 for 6 in the second match. The Pakistan Cricket Board has again extended the deadline for bids for the 2 new PSL franchises to December 24, 2025, citing growing interest from international investors. The 11th edition of the PSL is scheduled to take place from March 26 to May 3, 2026. The President's Cup Grade 1 tournament has reached the semi-final stage following a series of high-scoring league matches and exceptional individual performances. OGDCL emerged as a dominant force, securing a 6th consecutive win to top their group, while PTV also qualified, setting up a clash between the two sides in the first semi. जी दैट वाज द क्रिकेट न्यूज़ राउंड अप फॉर यू. क्विकली एक करेक्शन भी मैं करना चाहूँगी. हमारी न्यूज़ में थोड़ा सा एक एरर आया था. अली रज़ा जो हैं उन्होंने कल के मैच में 4 विकेट्स हासिल किए थे. सुभान अहमद ऑल्सो टुक विकेट्स. उनका स्पेल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन it was of course Ali Raza's 4-wicket spell, giving away just 42 runs. And of course Abdul Subhan pitched in, Mohammad Sayyam pitched in, and Huzaifa Ehsan also pitched in with 2 wickets each. A comprehensive bowling victory पाकिस्तान के bowlers की तरफ से. बड़ा ज़बरदस्त अटैक हमने देखा बैटर्स की तरफ से भी. We saw that effort. एक ब्रेक लेते हैं, but break के बाद when we come back we will be unpacking this final and of course this tournament and what it means for Pakistan to win.
जी, welcome back. You're watching Sports Tonight. Break से पहले, of course, we shared a roundup of cricketing news from around the world. अब बढ़ते हैं जी आज के शो के analysis section की तरफ. I'm joined by two of our regulars. Once again, sports expert and नहीं कहते ना, अब हम उनको seniority wise introduce करवाएं या हम उनको किस I'm struggling to find the right word because last time when I called him a senior analyst तो थोड़ा सा उनका शायद वो माइंड कर गए थे. I don't know. Let's ask him. We got a regular sports analyst Hassan Azam is with us. Assalamu alaikum Hassan. Great to have you on the show. वालेकुम अस्सलाम. Pleasure to be here. देखें सीनियर जूनियर स्पोर्ट्स में नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए मैं बल्कि आपने तो अनाउंस मुझे ही शायद ये करना पड़ेगा 150th एपिसोड today. So happy, alhamdulillah. I think credit goes to everybody, the camera team, the helpers, the producers, everybody, all the guests, most of all you, of course. And secondly, I think we've shared so many wonderful moments. Like हमने अशर नदीम को गोल्ड मेडल जीते देखा, हमने पाकिस्तान के अरसलान ऐश को वो टूर्नामेंट्स जीते देखे, फिर emerging Asia Cup, the under-19 Asia Cup. There's so many good moments there. I think that hoping the journey, continues. Absolutely, and you've put that so beautifully. मैंने last week भी show में ये थोड़ा सा teaser दिया था, but today of course I'm very thrilled to share this कि आज हमारा 150th episode है Sports Tonight का, and we're so glad to be bringing it live from Lahore. हमारे साथ हमें आज एक और बहुत special guest ने join किया है, who was actually with us when we started this Sports Tonight journey. We've got Pakistan international cricketer Adnan Akmal in the studio. Assalamu alaikum Adnan. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र. बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया. बहुत सी चीज जो अचीवमेंट्स हमारे क्रिकेट में हुई, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे पीटीवी स्पोर्ट्स टुनाइट पे हुई, और बहुत सी चीज़ें देखी और बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन की, और स्टिल नाइट आउट 150 एपिसोड इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा, और लुक फॉरवर्ड. अच्छी हमारी इनिंग्स हो गई है जी 150 एपिसोड्स की, और आज का एपिसोड जो है वो मैंने जिस तरह शुरू में भी कहा कि एक और रीज़न दैट इट्स बिकम मोर स्पेशल is because Pakistan under-19 team has given us a big reason to celebrate, and not just see this victory in terms of just a trophy, but also what it signals in terms of Pakistan cricket's development. हम अपने शो पे बहुत सारे स्पोर्ट्स के हवाले से डेवलपमेंट की बात करते हैं. जब भी हमारे बाकी स्पोर्ट्स के यूथ टीम्स दुनिया भर में जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेडल्स लेके आते हैं, ट्रॉफीज़ लेके आते हैं, अंडर-19 पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है बड़े टाइम के बाद एक ट्रॉफी, क्रिकेट की ट्रॉफी पाकिस्तान के पाकिस्तान आई है और घर आई है. सो इसके ऊपर पहले तो आप ये बताएं व्हाट दिस ट्रॉफी मींस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल साइन. आपने बड़े थोड़े अरसे में हांगकांग सिक्सेस, जिसको हम इतनी सीरियसली तो नहीं लेंगे, वो जीता, फिर आपने इमर्जिंग एशिया कप जीता, फिर अब अंडर-19 एशिया कप जीता, एंड द परफॉर्मेंसेस दैट केम थ्रू आई थिंक बोर्ड्स रियली वेल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. क्योंकि कुछ महीना पहले हम बात कर रहे थे कि वाई वी आर एक्साइटेड अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड हाउ the white ball and the red ball landscape is changing, and the results are starting to show. I think that's brilliant. Credit goes to all the management, all the staff. I know some of the people weren't there, जो इस under-19 setup के साथ काम करते रहे हैं. People like Ali Raza, Ubaid Shah, रेहान रियाज भी, इन्होंने फास्ट बॉलर्स के साथ बड़ा काम किया, और ओवरऑल जो लड़कों ने खुद काम किया है, आकिब जावेद हैज़ टू बी गिवन credit as well. I loved his statement after this win, because he was talking about how we need the right infrastructure around our cricketing circle to build that talent which continues to grow and continues to come through the ranks. I think that's very important. Other teams, other countries are doing that. We need to follow suit, and the results are showing. I'm so happy for Pakistan cricket right now. बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है ये कि एशियन चैम्पियंस हम बने हैं. इससे पहले ऑफ कोर्स हमने शाहीन्स की जो विक्ट्री है, हमने शाहीन्स की प्रोग्रेस के ऊपर भी बात की भी है. अब हम एज ग्रुप क्रिकेट के ऊपर भी फोकस करें. अगर अ बिग पॉजिटिव साइन, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उस तरह से पिछले कई सालों से उस तरह से डेवलप नहीं हो रही है और ग्लोबल स्टेज पे नज़र नहीं आ रही, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा साइन है कि दैट्स नॉट ट्रू. वी हैव सो मच रॉ टैलेंट. अदनान, आपसे आपकी मैं राय लेना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में खेला, इतने बड़े मार्जिन से जीतना, 191 रन्स इज़ अ
big margin. And for a final to be that high scoring पाकिस्तान की तरफ से, और फिर bowling में भी पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त एक जिसे कहते हैं ना, इंडिया को किसी तरह का रूम नहीं दिया to develop any partnerships to go for that total. What will you say on this all round performance? देखिए 150 एपिसोड है और इससे बेस्ट गिफ्ट जो है वो हमें नहीं मिल सकता जिस तरह अंडर 19 ने एशिया कप में परफॉर्मेंस दिया। और देखें जिस तरह का राउंड में वो मैच खेले थे तो उनको चीज़ें कुछ समझ नहीं आई, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ अगर मैनेजमेंट की बात करें या प्लेयर्स की बात करें या आप जितनी ट्रॉफीज़ अब इमर्जिंग की बात करें, हम हांगकॉन्ग की बात करें, इसका मतलब है कि चीज़ें बेटर होना शुरू हो गई हैं यंगस्टर के लिए। कोई भी जगह या कोई भी प्लेटफॉर्म जब अच्छा मिलता है इन बच्चों को तो फिर इसी तरह के रिजल्ट देखने को नज़र आते हैं। अगर आकिब भाई की बात करें, आकिब भाई की मैं बात बहुत ही अच्छी लगती है, वो टाइम पे बड़े पॉइंचल वो हैं। वो अगर 6 बजे सुबह कैंप लगना है तो 5:45 वो खुद ग्राउंड में होते थे। और देखें जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद सरफराज की बात करें, सरफराज जब कैप्टन था तो बहुत एग्रेसिव था। सडनली वो एक मैनेजमेंट में आया, उसको फर्स्ट एडिशन था और इस तरह का एडिशन उसको मिलना, बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि उसने अपनी कैप्टनसी में बहुत से प्लेयर डेवलप किए हैं। तो ये भी उसकी उसी तरह का एक रिज़ल्ट है कि जूनियर्स के साथ उसने टेबल पे बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ, वो काम कर रहा है। और उसके बाद हाजी शाहिद अनवर की बात करें, मंसूर अमजद जो फील्डिंग कोच है, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव वे से हुई और काम अच्छा हुआ। तो फिर इसी तरह के रिजल्ट देखने को नजर आए पाकिस्तान जूनियर बिल्कुल। टीम और हम कुछ प्लेयर्स को भी अब स्पेशली हाईलाइट ज़रूर करेंगे, प्लेयर जिन्होंने फाइनल में बल्कि सेमीफाइनल में भी उस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान को जिस तरह के स्टार्ट्स दिए, जिस तरह की फाउंडेशन दी। ज़ाहिर है 50 ओवर क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट दोज पार्टनरशिप्स एंड प्लेइंग दैट डीप इनिंग्स। जिस तरह समीर मिन्हास ने फाइनल में परफॉर्म किया, अगेन 172 ऑफ 113, दैट्स crazy. I mean, how else do I put it? This is a spectacular knock under so much pressure. You're facing India in a final and you've got to deliver when it comes to opening the innings and sort of आगे जो मिडल में आने वाले बैटर्स हैं उनके लिए भी प्रेशर ईज ऑफ करना, एक ज़बरदस्त ठंडे दिमाग से खेलना, रिस्पॉन्सिबली खेलना। हसन, what are your thoughts on seeing him? He shattered a lot of records as well in this tournament. This was the highest individual score in the final of an under-19 tournament. He surpassed Quinton de Kock's 146 against Pakistan in the final of the Tri-Nation tournament. उन्होंने highest number of sixes भी लगाए for an youth ODI batter in a final. So to do that, I mean, Sameer Minhas has shown brilliantly. I mean, जिस तरह इमर्जिंग एशिया कप में मास सदाकत ने डोमिनेट किया था ना विद द बैट, आई थिंक समीर, दिस वाज हिज टूर्नामेंट थ्रू आउट। और इसकी सबसे कमाल चीज़ ये लगी कि जिस तरह उन्होंने स्ट्रोक प्ले खेला, ही ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ पॉलिश्ड प्लेयर। एक अंडर 19 के प्लेयर के स्ट्रोक प्ले और इनके स्ट्रोक प्ले में फ़र्क नज़र आ रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ लाइक ही बिलोंग्स देयर, ही इज़ बीन देयर फॉर अ वाइल, स्पेशली द हिट्स डाउन द ग्राउंड एंड ऑन दी अप उन्होंने निकल के जो कवर पे मारे। Any batsman in the world would be proud of those shots. That's the type of ability we saw in this guy. He's been through the ranks from the under 16 system. Arafat Minhas के भाई हैं, so there's cricket in the family, there's cricket in the blood. लेकिन पहली बार इस टूर्नामेंट में उन्हें अंडर 19 की तरफ से रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला और how well did he take that? He dominated that game. 177 उन्होंने मलेशिया के खिलाफ भी किया था, लेकिन जब इंडिया के खिलाफ राउंड मैच में वो उस तरह डोमिनेट नहीं कर पाए, आके जिस तरह उन्होंने अपना धावा बोला और बॉलर्स को चारों तरफ जो शॉट्स लगाई, इट ऑलमोस्ट पुट द होल टीम एट ईज। और जब कोई ऐसा बंदा साथ खेल रहा हो, फिर एसन ने भी आके वो 50 की, दैट वाज द ओनली अदर 50 प्लस स्कोर इन द नॉक, आपको ज़रूरत भी नहीं होती। एंड यू फेल्ट इट, लाइक द इंडियन शोल्डर्स ड्रॉप्ड, देयर हेड्स ड्रॉप्ड, दे न्यू दिस वाज अ टोटल which was looking far beyond them, and as soon as Suryavanshi got out, more or less the game was done. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि अंडर 19 लेवल पे इस तरह का स्ट्रोक प्ले, इस तरह की कमांड देखना एक बैटर से, एक यंग बैटर से, बहुत पॉजिटिव साइन है अदनान। कितना हमें अब इनके ऊपर, अब जिस तरह समीर मिन्हास हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि एज ग्रुप क्रिकेट से या इवन हमारे इमर्जिंग सेटअप से आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि हम इनको करेक्ट वे में यूटिलाइज करें ताकि आगे जाके ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बने और पाकिस्तान को मज़ीद भी सर्व करें। देखें, अगर ये पूरी लॉट की बात करें, अंडर 19 के लॉट की बात करें, तो ये
ऐसे प्लेयर हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए प्लेयर डेवलप हो सकते हैं। और जिस तरह का इन्होंने टूर्नामेंट फाइनल में इतना बड़ा मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा प्रेशर गेम होती है और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। और मनाज की बात करें, उसकी स्ट्रोक की बात करें, लुक एट दिस हाई एल्बो, उसका हाई एल्बो ऑन दी अप कितना अच्छा शॉट खेल रहा था। जहाँ ऐसे बैटर्स को बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है जिसके पास ज़्यादा शॉटें हों, और वही इसने किया। और क्या डोमिनेट इनिंग्स खेली है, पूरी इंडियन बॉलर को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया। और इस तरह की कंट्रोल इनिंग्स खेलना, फाइनल में खेलना, तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है जो पाकिस्तान को एक प्लेयर मिल गया। ऐसे प्लेयर जो होंगे वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर जो है वो टीम को संभालेंगे। और इतना मैच में खेलना, और दूसरी अगर हम बैटिंग की बात करें तो उसके साथ पार्टनरशिप ज़रूर लगी है जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल रन हुआ। उसके बाद उस्मान था, शायद उसने रन्स किए। उसके बाद कंट्रोल देखें क्या उम्दा इनिंग्स खेली है, और इस तरह की इनिंग्स हमेशा याद रहेगी इस अंडर 19 प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, अहमद हुसैन भी हैं हमारी टीम के। अगेन एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस, जिस तरह मैंने शुरू में कहा। बॉलिंग में भी हम अगर बात करें, जिस तरह मैंने शो के शुरू में भी कहा कि बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो अंडरस्टूड द असाइनमेंट। तो एक तो स्कोर बोर्ड प्रेशर है ठीक ठाक, क्योंकि फाइनल है, हाई स्कोरिंग मैच। आपको पता है 348 ऑन द बोर्ड इज़ अ प्रिटी चैलेंजिंग टोटल फॉर अ फाइनल, एंड द वे द बॉलर्स understood the assignment. Hassan, how will you break down the bowling performance by Pakistan? आई थिंक ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में आपकी बॉलिंग, खास तौर पे फास्ट बॉलर्स ने कमाल लाइन और लेंथ्स को हिट किया है। पार्ट ऑफ द रीज़न आई गेस कि सरफराज अहमद भी वहाँ मौजूद थे 2004 में अंडर 19 वर्ल्ड कप लास्ट पाकिस्तान के लिए, वही जीते हुए एज अ कैप्टन। और उस फिर लॉर्ड से भी बहुत से प्लेयर्स ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जितवाया पाकिस्तान को। और ये वही लग रहा था मुझे कि पाकिस्तान पुट इनटू, मतलब इस टाइम राउंड पुट इनटू बैट, they score that big total and India have to come out all guns blazing and they can't do it, and it's a big margin of victory. तो credit सरफराज को भी जाता है। और जिस तरह आपके बॉलर्स ने इस टूर्नामेंट में हर ऑपोजिशन को ऑल आउट किया, दैट वाज समथिंग यू वर कैरिंग इन दैट फाइनल। और जैसे वो इतना बड़ा स्कोर लगा, ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक द बॉलर्स वर एट ईज टू बॉल दोज हार्ड लेंथ्स, फास्ट लेंथ्स। खास तौर पे अली रजा, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स की अच्छी हाइट है, दे हिट द डेक हार्ड एंड गॉट दैट एक्स्ट्रा बाउंस which was troubling the Indian batters, क्योंकि जब इतना बड़ा टोटल है, you can't respect those deliveries, you have to go after them. That's where they lost the wickets and Pakistan cruised through to victory. No one better than Sarfaraz Ahmed to guide you when you're facing India in a final. I mean, he has got that experience. And जिस तरह आपने वर्ड यूज़ किया कि नॉस्टैल्जिक फैक्टर एक ज़रूर था, एक ग्लिम्स हमें नज़र आया, नॉट जस्ट ऑफ द अंडर 19 टाइटल बट ऑल्सो चैम्पियंस ट्रॉफी का। वी हैव सीन सरफराज अहमद, बहुत सारी उनकी बात हो रही है एज अ मेंटोर। आपने भी अभी हाईलाइट किया कि कैसे वो एज अ कैप्टन थोड़े एग्रेसिव होते थे, लेकिन अब वो एज अ मेंटोर एक शेप शिफ्टिंग उन्होंने की है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। आई नो बहुत सारे लोग अब कुछ चीज़ों पे जो है वो जज्बाती भी हो जाते हैं या बहुत सारे प्रिडिक्शंस करने लग जाते हैं। सरफराज अहमद का आइडियली आप आगे फ्यूचर अब क्या देख रहे हैं, कैसे वो मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट को किस कैपेसिटी में वो बेहतर ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखें, अगर सरफराज की बात करें तो उसने हमेशा जो, जब वो अंडर 19 से उसका कैरियर स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे साथ क्रिकेट खेला है, तो उसके बड़ा पॉजिटिव माइंड है। जब पॉजिटिव इंसान होता है ना, वो हमेशा चीज़ें बेहतरी करने की सोचता है। और सरफराज की थिंकिंग ऐसी है कि वो अगर ख़ुद भी कैप्टन था, फिर पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन बना, तो उसके अंडर कितने प्लेयर डेवलप हुए हैं, और वही प्लेयर अब पाकिस्तान टीम में कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। उसके बाद अगर कोचिंग की बात करें तो इस तरह के सिस्टम में लोग लेकर आना, इन बच्चों के साथ लगाना, यही बड़ी बहुत खुशाइन बात है। और क्रेडिट टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको आइडिया था कि उनको उन बच्चों के साथ लगाया जहाँ पे वो बच्चे डेवलप कर सकते, क्योंकि फ्यूचर इन बच्चों से ही हमारा पाकिस्तान का बनेगा। और हम बॉलिंग की बात करें कि अली रज़ा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। देखें, 3 ओवरों में 41 रन हो चुके थे पाकिस्तान को। सडनली राव इफ्तिखार अंजुम जो थे वो बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि बॉलिंग कोच थे वो, और वहाँ पे सडनली प्लान किया उन्होंने, वेरिएशन की बॉल में, क्योंकि बॉल पहले आगे कर रहे थे तो रन हो रहे थे। फिर उन्होंने बिल्कुल जो है वो एक कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली। ऑफ कोर्स ये जो है एक इंडिकेशन ही है कि आगे जो है पाकिस्तान की यूथ टीम जो है कितना रैपिडली ग्रो कर सकती है। हमने मेंटोर्स की बात की, कोचिंग स्टाफ की बात की, बट ऑफ कोर्स द बिगेस्ट क्रेडिट गोज़ to the boys, to the players who played like champions and who got a hero's welcome. I mean, did you see those clips जब वो वापस आए हैं ट्रॉफी लेके? ये भी एक और सिग्नलिंग है कि
our nation, of course, everybody, we are very eager to have these trophies back, you know, flowing back in. हमने बार बार ये आपने भी अभी जिक्र किया कि it has been a while. Yeah. तो ये moment कितना sweet था. I think as sweet as it gets, because I truly believe कि sporting inspirations और champions आपके मुल्क से निकलने के लिए ना, you need things to look up to. तो जब आपको ऐसा heroes welcome मिलता है, आप वापस आते हैं पाकिस्तान में, every young cricketer aspiring to play for Pakistan is looking at that. And they want to be that guy. They want to be that man of the match winner. They want to be Farhan Yusuf hugging that trophy and bringing it home, because those are the dreams which are born out of such visuals. And I think that's beautiful. और आप ये तारीख में देखते चले आएंगे, जो टीम सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस, ठीक है, तो आप जब चैंपियनशिप किसी भी लेवल पे जीते जाएंगे, वो एक ट्रिकल होता है इफेक्ट, and that carries on into the senior side, into the junior side, and most importantly, that gives you heroes to look up to, that gives you positives to look at Pakistani cricket, and we'll be searching for that for a while. Absolutely. और हम हैं ही one sport nation. अब हम जितना मर्जी इस बात को डिबेट करें, पाकिस्तान में क्रिकेट का जो स्टेटस है वो और किसी स्पोर्ट का नहीं है एट प्रेजेंट. लोग जितनी शिद्दत से क्रिकेट को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं, एक एक मैच को, तो ज़ाहिर है अंडर-19 टीम ने वापस आना था, तो एक हीरोज़ वेलकम जो है वो ज़रूर मिलना था. मुझे हमेशा वो पैट कमिंस का वो याद आता जब वो वर्ल्ड कप जीत के वापस ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो एयरपोर्ट पे कोई ख़ास उनको ना कोई प्रेस है ना कोई फैंस हैं, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी स्पोर्ट्स खेलती है तो शायद उनके लिए क्रिकेट उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो उनके लिए होता है फिर जीता है. अच्छा और क्या नहीं बात. और सुनाओ. देखिए ऐसी अचीवमेंट हमेशा जो है ना वो यंगस्टर को बूस्ट करती है, और उसके क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हमारी फर्स्ट स्पोर्ट्स है जो हर घर में देखी जाती है, वो बच्चा हो बूढ़ा हो. बच्चों की बात करूँ तो मेरे बेटे टोल मी कि पाकिस्तान अंडर-19 विल विन द एशिया कप, तो मेरे बच्चे मुझे बता रहे हैं. तो ये मोटिवेशन जब बच्चों में आएगी तो कल को वो भी सोचेंगे कि हमने भी इस प्लेटफॉर्म पे जाना है और इसी तरह क्रिकेट खेलनी है. जब ऐसी अचीवमेंट्स होती हैं तो यंगस्टर के लिए, उन बच्चों के लिए मोटिवेशन होती है. तो ऐसा होना चाहिए. देखिए बहुत सी चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, तो इस तरह का रिजल्ट देखने को नज़र आया जूनियर लेवल पे. एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी वेल समड अप. यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक के लिए तरफ जाएंगे. व्हेन वी कम बैक वी हैव लॉट्स मोर इन स्टोर फॉर यू. प्लीज डोंट गो एनीवेयर. यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट. Right, welcome back. You're watching Sports Tonight and now we head to the Ashes. Of course, हमने जिस तरह शुरू में भी बताया कि एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही. अपने गेस्ट से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि हम बिल्डअप भी करते रहे एशेज़ का, हमने पहले टेस्ट के ऊपर भी बात की, फिर हमने कहा कैन इंग्लैंड मेक अ कम बैक, फिर सेकेंड टेस्ट आया, फिर हमने यही बात की कैन इंग्लैंड मेक अ कम बैक. नाउ वी आर हेयर. It might be too late for a comeback, for a series winning comeback now. But what is going wrong with England? हम बार-बार यही बात कर रहे थे कि they do have the match winners in this side, and before the series started, a lot of people were actually saying कि ये Australian side is missing some big players. They don't have that right combination. तो अब इतनी imperfect और unbalanced team है, अभी तक 3-0 जा रही है. ये क्या हो रहा है? I think that's the part which must hurt the England fans the most, क्योंकि आपको एक फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन साइड देखने को नहीं मिली. मतलब स्टीव स्मिथ ने भी एक मैच में नहीं खेले, नेथन लायन ने एक मैच खेले, पैट कमिंस 2 मैच नहीं खेले, उस्मान ख्वाजा को भी रेस्ट करना पड़ा, हेजलवुड पूरी सीरीज ही नहीं अभी तक खेले. तो देयर इज अ लॉट ऑफ एब्सेंटीज देयर, और इंग्लैंड वुड हैव थॉट के अंडर बैज मैकलम एक रिसर्जेंस है उनकी टेस्ट क्रिकेट में, बैस बॉल और वो सारा करना, आके हम कुछ बेहतर करेंगे. एंड देन they were just not up to the standard. ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को खेलना without doubt it's one of the toughest things you will ever do, and that's I think as a test cricketer that's probably the ultimate benchmark कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जीत जाओ, क्योंकि इंग्लैंड तो 2011 के बाद वो कर नहीं पाई है. 18 straight matches they've not gone on to win a single one of them. And I think बैज मैकलम ने जिस तरह मैच के बाद आके इस चीज़ को तस्लीम किया,
जो कि पहले काफ़ी लोग कह रहे थे, एक्स इंग्लैंड कैप्टन भी कह रहे थे, वो नहीं थे मान रहे, बट उन्होंने तस्लीम किया कि शायद तैयारी उतनी नहीं थी। प्रॉब्लम इज़ आई ट्रूली बिलीव अगर आप किसी भी कंडीशंस में जा रहे हैं, खास तौर पे एक बड़ी सीरीज से पहले आपको उधर जाना है जल्दी। इंग्लैंड ने वाइट बॉल सीरीज खेली न्यूजीलैंड में, वाइट बॉल सीरीज, एंड देन कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द एशेज। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ ही एक मैच खेलते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस मैच आपस में ऑन अ स्लो विकेट, आपको पहला मैच आपका पर्थ में, तो ही एडमिटेड कि हमारी तैयारी उस तरह नहीं थी। फिर आपकी ब्रिस्बेन टेस्ट की बात कर लें, डे एंड नाइट मैच है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, नाइट प्रैक्टिस नहीं थी कोई, तो और आई थिंक इंग्लैंड का फास्ट बॉलिंग अटैक मार्क वुड के जाने से बहुत सफ़र किया, जोफ्रा आर्चर उनके लीड बन के, लेकिन दैट सपोर्टिंग रोल विच इंग्लैंड जनरली हैज़ इन स्विंग एंड सीम बॉलर्स, it's not probably their best lineup ever. And that X factor has really Yeah. been missing. हम यही बात बार बार कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ठीक है, इंग्लैंड डू हैव दैट दोज मैच विनर्स और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, जो हम आर्चर की बात करें, बेन स्टोक्स की बात करें, एक बैलेंस है उनका, बट अगेन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, ना सिर्फ उनका प्लान ए इतना थ्रेटनिंग है, लेकिन उनका प्लान बी, जो कि शायद टीम्स ने प्लान ए के लिए भी तैयारी नहीं की हुई थी, वो प्लान बी के लिए क्या तैयारी करते। खैर ख्वाजा, एलेक्स कैरी, इवन नेथन लायन का कमबैक हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो शायद स्क्रिप्ट में अदनान नहीं थी, बट इस मैच में एवरीथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया की अब बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मैं हसन की बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत मुश्किल है। अगर दूसरी तरफ इंग्लैंड की बात करें, हम बात ऑस्ट्रेलिया की करें कि उन्होंने चीज़ें बेहतर क्यों की, कहीं ना कहीं इंग्लैंड का भी क्रेडिट इसमें जाता है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच आ रहे हैं, उसके बाद अगर दूसरे टेस्ट मैच की बात करें, इंग्लैंड अगर वो कैचेस पकड़ लेता तो शायद वो इंग्लैंड मैच जीत जाता। वहाँ पे वो प्रेशर आया, पहले टेस्ट मैच का प्रेशर आया, और तीसरा टेस्ट मैच ऐसा मैच था जहाँ पे सीरीज जो है वो डिसाइड होनी थी कि ये टेस्ट सीरीज़ कौन जीतेगा। वो तीसरे मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कमिंस की बात करें, उसका आना, और उसके बाद एलेक्स का 100 रन्स करना, और फील्डिंग कैचेस की बात करें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और क्या उनका कैचेस पकड़े हैं ऑस्ट्रेलियन स्लिप फील्डर ने। और एलेक्स देखें, हमने जितनी क्रिकेट खेली हमें यही पता है कि विकेट पर खड़ा हुआ है, और उससे एक स्टेप पीछे जो है वो फर्स्ट स्लिप वाला या सेकंड स्लिप वाला हमारे बराबर खड़ा होता था। और वहाँ पे एलेक्स के आगे से कैच पकड़ना इस तरह, और इस तरह कोऑर्डिनेशन से दोनों का खड़े होना, ये बहुत चीज़ें ये वहाँ पे की जाती हैं जहाँ पे प्लान किया जाता है। और जब आप प्लान करते हैं तो फिर इसी तरह के रिजल्ट देखने को नज़र आते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के साथ किया। Let's talk about Travis Head. Of course, he has been so monumental इस सीरीज़ में so far. Back to back हम 100s भी देख रहे हैं उनके, हम उनकी तरफ से एक जिसे कहते हैं ना कि fearless and explosive cricket, जो कि he's sort of changing the way Australia look at Test cricket. We've always known Australia to be aggressive and to have that kind of approach, but Travis Head is that one cricketer in this team perhaps who's really embodying that beautifully. And the best part, I think, for England, the worst part is that they don't seem to have an answer to Travis Head even in the third test. अभी तक 3 मैच, ठीक है तैयारी नहीं थी, बट अब तीसरे मैच तक कोई तो टैकल करने का जवाब आना चाहिए था ट्रैविस हेड को। सही कह रही हैं आप। आई थिंक जब कोई बैट्समैन इस तरह डोमिनेट कर रहा हो और आपको, और स्पेशली यूजिंग द होल क्रीज, जिस तरह भी उन्होंने फाइन लेग की तरफ भी शॉट लगाया, इट्स very difficult as a bowler to know where to bowl at him. I mean, you won't see slow deliveries in Test cricket, so it's almost like he's playing a T20 innings. तो उन्हें समझ ही नहीं थी आ रही कि हमें प्लान बी क्या करना है। आपने बड़ी कमाल बात हाईलाइट की है। That's one of the reasons England looked underprepared, कि उनके पास ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स के लिए प्लान बी सी नहीं थे। एंड हमने ये देखा, यू नो, पीपल लाइक सनत जयसूर्या, वीरेंद्र सहवाग यूज्ड टू डू दैट इन टेस्ट क्रिकेट, दैट डेविड वार्नर डिड दैट फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसके अलावा मैथ्यू हेडन, स्लेटर, ये उस तरह के जस्टिन लैंगर जैसे ओपनर आते थे, लेकिन इतनी डोमिनेशन से ओपनिंग करना और फिर पूरी दूसरी टीम को बिल्कुल बैकफुट पे लगा देना, ख़ास तौर पे इनकी ओपनिंग इस सीरीज़ में बनती भी नहीं थी, करनी ख्वाजा ने थी, उनके बैक स्पैज़म की वजह से इनको करनी पड़ी। दैट्स अ टेस्टामेंट टू द वर्सेटिलिटी ऑफ ट्रैविस हेड। एंड जिस तरह आपने कहा, आई थिंक दैट्स परफेक्टली सम्स इट अप, कि ही एम्बॉडीज दैट ऑस्ट्रेलियन cricket mindset, that spirit, and what a wonderful way to stamp his authority on this Ashes tour. Absolutely lovely scenes there as he celebrates yet another Test 100, a force, an absolute force in red ball cricket for Australia. Chale, Travis Head, of course, was
always going to do that. Everybody sort of knew कि that's his role और वो उस role को बड़ा खूबसूरती से play out करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें वो प्लेयर्स जो कि हमें पहले 2 मैचेस में नज़र नहीं आए, लास्ट मैच में भी ये बात हो रही थी, नेथन लाइन आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे. ऑस्ट्रेलिया वेंट another way, but now he came back, 3 wickets for him. Pat Cummins is back in his role as captain. Of course, beautifully he plays, he wears all those hats beautifully, and जिस तरह से वो pressure carry करते हैं. Pat Cummins, Nathan Lyon, both of them picking up 3 wickets. How spectacular is it that Australian team is finally coming back together the way that they were? देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मिचेल था, उसने न्यू बॉल के साथ आउट करता था. कमिंग्स आया तो उसने भी आके 3 विकेट हासिल किए. और नेथन लायन की बात करें तो ये दोनों ऐसे टीम के मेंबर्स हैं कि जहाँ पे विकेट की ज़रूरत होती है वो विकेट लेके देते हैं अपनी टीम को, और इसी तरह का प्रेशर बनाते हैं. और उसके बाद अगर आपके जो एलेक्स की बात करें या स्लिप वाले फील्डर की बात करें, तो जब आपकी टीम आपके जो है फील्डर आपको सपोर्ट करते हैं तो फिर आपकी बॉलिंग करने का भी मज़ा है. और दोनों अगर इनकी एग्रेशन की बात करें, देखें इंग्लैंड बिल्कुल बैकफुट पे हुआ है और आके इस तरह और प्रेशर बनाना इंग्लैंड के बैटर्स के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और वही उसने कंटिन्यू किया. और नेथन लायन की बात करें तो उससे खैर अनफिट तो हो गया, वह बाउंड्री पे डाइव किया, वो अनफिट हो गया. होपफुली कि वो जो अगला टेस्ट मैच होगा उसके लिए फिट हो जाएगा. बहरहाल दोनों की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग, और इस तरह की परफॉर्मेंस हमेशा आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. नाउ ऑस्ट्रेलिया दे आर लीडिंग द टेस्ट सीरीज 3-0 up. Now that the pressure is off, now that the worst of your जिसे कहते हैं predictions has come true, Australia have taken the ashes away. क्या अब अगले टेस्ट में हम इंग्लैंड की तरफ से थोड़ी और मज़ीद fearless approach देखेंगे, थोड़ी और careful और mindful approach देखेंगे? What's it looking like for England? Yeah, I think they'll be hoping कि आप fearless रहें लेकिन careless ना रहें, क्योंकि हमने careless बहुत देखा है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को. So there has to be a balance there. और secondly, I think the pressure is off. जिस तरह आपने कहा कि कप्तान के ऊपर से भी कोच भी खुद एडमिट कर गए हैं कि उस तरह की तैयारी नहीं थी, हमें बेहतर इसके लिए तैयार करना चाहिए था. और उनकी तरफ से बेहतर परफॉर्मेंसेस नज़र ज़रूर आएंगी. आई थिंक जिस तरह अदनान ने बात की, इज़ वेरी राइटली पॉइंटेड आउट के पहले टेस्ट मैच में भी, दूसरे में भी, इवन तीसरे में भी कई जगह पे इंग्लैंड को ऐसे लगा कि वो बराबर थे और पहले दूसरे में तो सेंडेंसी पे भी आ गए थे, वहां से उन्होंने वो अपना एडवांटेज लूज किया है. तो दे कैन एब्सोल्युटली कम्पीट विद देम, बट टू डू दैट ओवर 5 days कंसिस्टेंटली अगेंस्ट एन ऑस्ट्रेलियन साइड, आई थिंक इट विल बी अ गुड टेस्ट फॉर देम. और रोहा जी, जब भी आप ये एशेज सीरीज देखते हैं ना, इसके एंड पे तब्दीलियां बहुत सी होती हैं. लास्ट टाइम जो रूट जब हारे थे, लॉस्ट 4-0 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसके बाद उनकी कप्तानी चली गई, डायरेक्टर चेंज हो गए, काफ़ी कुछ चेंज हुआ. आई थिंक मैकलम का वाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ अंटिल 2027 वर्ल्ड कप तक है, तो वो जानते होंगे कि आई हैव टू डू समथिंग बेटर हेयर, बिकॉज मैंने आके अगर बुनियाद रखी है और फिर ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर टॉस के ऊपर रॉन बॉल की शर्ट्स पहन के आ रहे हैं, तो इट्स अ डायरेक्ट चैलेंज टू हिम एज वेल कि भाई आप बेस बॉल लाए थे. हाँ, उसका जवाब हमारे पास है जी. रॉन बॉल की शर्ट्स, उनके जो कोच हैं एंड्रयू रॉन मैकडोनल्ड, उनको एक sort of एक ट्रिब्यूट वो दे रहे हैं, बट एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ you know paying tribute and saying thank you, and it's been a great Ashes so far. I think आगे वाले मैचेस में भी हम यही स्पिरिट और यही इंटेंट देखेंगे फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन साइड. दूसरी तरफ जी टेस्ट सीरीज़ एक बहुत ज़बरदस्त खेली जा रही है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान. इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि हमने उस ड्रॉ की बात की, एक हिस्टोरिक ड्रॉ जो किया वेस्ट इंडीज़ ने, जो कि हम में से कोई शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. बट अगेन न्यूजीलैंड हैव नाउ वन द 3-match टेस्ट सीरीज़ 2-0 वो अभी लीड कर रहे हैं. एक और बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस हमने देखी फ्रॉम न्यूजीलैंड. 323 रन्स के मार्जिन से उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स भी बने हैं. पहले तो आप इस पे बताएं थोड़ा सा न्यूजीलैंड की रेड बॉल डोमिनेंस ओवर वेस्ट इंडीज़. देखें, अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो हमेशा वो डोमिनेट करती है. रेड बॉल देखें, रेड बॉल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इंग्लैंड की टीम, ये सबसे ज़्यादा उसको हाईलाइट जो कहते हैं इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड भी आती है. और न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरह आके बॉलिंग की, इतने बड़े मार्जिन से वो सेकंड, हम कहते हैं ना टेस्ट मैच एक ड्रॉ हुआ, वो इसी वजह से कि वेस्ट इंडीज़ का एक बैटर आया, उसने नीचे से आकर डबल सेंचुरी स्कोर कर दी, वो भी जीत सकता था न्यूजीलैंड. ये वाला मैच बड़े मार्जिन से, क्योंकि उन्होंने प्लान किया कि नीचे देखें टॉप न्यू बॉल के साथ तो आउट हो जाते, पर पुराने
बॉल के साथ कौन सा ऐसा बॉलर था जो आके आउट करता वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स को, वही देखने को नजर आया। और जब आप प्लान अच्छा करते हैं, सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, तो फिर आपको इसी तरह के रिजल्ट देखने को नजर आते हैं। एक टीम एफर्ट हमें देखने को मिला एंड टॉम लेथम एंड डेवन कॉनवे ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड भी सेट किया है। टेस्ट हिस्ट्री के रिकॉर्ड तोड़ दिया है, फर्स्ट क्लास हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दे आर द फर्स्ट ओपनिंग पेयर to score hundreds in both innings of a test match. How spectacular was that to see? Amazing. I think कॉनवे की अगर आप बात करें तो वो वाइट बॉल सेटअप से तो थोड़ा साइड पे होते रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, बट इन टेस्ट क्रिकेट द वे ही केम एंड डोमिनेटेड, और ख़ास तौर पे उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो न्यूजीलैंड की साइड, जिस तरह ना ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में विल ऑलवेज बी एट पार, और उनके घर पे जाके खेलना इट्स नेवर गोइंग टू बी ईजी। बट ये रिकॉर्ड जिस तरह आप बता रही हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह के स्कोर्स करना और इतनी कंसिस्टेंटली रन स्कोरिंग करना विद योर पार्टनर, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर देम। तो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम ऑन मेकिंग दैट रिकॉर्ड, एक्सेप्शनल नॉक्स। एंड अदनान, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? इतने रन्स हम ओपनर्स की तरफ से देख चुके हैं इस मैच में, रिकॉर्ड भी बना है, बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड भी बना है। दोनों ओपनर्स ने दोनों इनिंग्स में हंड्रेड्स किए हैं। आप कैसे इसको, आपकी क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? देखें, हमेशा न्यू बॉल के साथ जो होते हैं ना, वो स्पेशल एक बैटर होते हैं जिनकी टेक्निक के हिसाब से ना वो खेलते हैं। और न्यू बॉल पे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शॉट्स पे रहते हैं ना, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होता है बैटर्स का आउट करना। और जिस तरह इन्होंने स्कोर रन्स किए हैं, दोनों ने सेंचुरी स्कोर किए, इसका मतलब है कि वो अपने जोन में रहे, और जोन में रह के पहले वो सेट हुए, और सेट होने के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी बात है। देखें, 100 रन्स करना टेस्ट मैचेस में बहुत मुश्किल होता है, और ओपनर जहाँ पे न्यू बॉल खेल रहा है, जहाँ पे देखें अगर मिचेल की बात करें तो कोई ओपनर उसके सामने टिक ही नहीं रहा, रन्स नहीं कर रहा। और यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड कॉर्नर की बात करें या दूसरे की बात करें, तो इसका मतलब चीज़ें अच्छी हुई, कंट्रोल से उन्होंने बैटिंग की। और अपनी होम कंडीशंस में हम इस तरह अभी पहले भी बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया भी कितने डोमिनेंट है, न्यूजीलैंड भी बहुत डोमिनेंट है। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, स्पेशली फॉर अ टीम लाइक वेस्ट इंडीज़, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में इतनी वाइट बॉल में इतनी ग्रोथ हमने उनकी देखी थी। फिर बीच में एक डिप आया जहाँ पे अब उनको हम मिसिंग भी देखते हैं। For them to be focusing on red ball and playing against a side like New Zealand, how important is this series for a side like the West Indies? I think they're in transition. उनकी मतलब कुछ सीरीज पहले ही कप्तानी भी चेंज हुई है, वो भी बड़ी देर कप्तान रहे थे ब्रैथवेट। उसके बाद they've realized कि उन्हें एक बॉलिंग क्वार्टेट भी चाहिए कंसिस्टेंट। आई मीन जेडन सीज की परफॉर्मेंसेस हमने वाइट बॉल पाकिस्तान के खिलाफ भी देखी थी, एंड आई थिंक ही इज समबडी जो कि काउंटी भी रेगुलरली खेलते हैं, एंड आई ट्रूली बिलीव कि he'll be one of the best players for West Indies in the future, but there's a lot they need to work at, especially on away tours. Gentlemen, thank you so much for your time and analysis. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया for watching and for being on this journey with us. Episode number 150 is wrapping up now, and of course, before we leave, एक और reminder that make sure that you're following us on social media, ताकि आप भी हमारी इस जर्नी में हमारे साथ साथ रहें। Even if we are off air, we're there on social media, we're there on YouTube, Facebook, Instagram, everywhere. So please make sure you're following us. अपना बहुत ख्याल रखें, and from the entire team of Sports Tonight, आपका बहुत शुक्रिया for being with us on this journey. Good night.